today's question number 15. Today we have to finish 28 questions. So 28 questions, 10 questions multiplied by almost 10 minutes. So 100 minutes का session है. We are going to take it up to 3 o'clock. Today's session में only 16 number I think difficult one. Remaining questions are very easy. Okay, चलो let's start. Question number 15. This is similar to illustration number study material, similar to study material illustration number 8. This is similar to illustration number 8 of study material. A job can be executed either through workman A or B. It takes 32 hours to complete the job while B. हाँ, so टिकटिकी जी जल्दी से आ जाइए, पूरा ध्यान देना सभी लोग. Okay, so A takes 32 hours, that is time taken by A, and B finishes it in 30 hours, time taken by B, and time allowed is 40 hours. The hourly wages rate of the both workers is RH is same. We will assume Y per hour. It is Y per hour. In addition to workman A is entitled to receive bonus, that is Halsey plan, and while B is under row 1 plan. The work overheads are absorbed on job of 7.5 per labor hour work. So beta, this is called as basis. So overhead are absorbed on the basis of labor hours. There are 6 bases. I will explain it in the next chapter. Revision में आपको सबको पता होना चाहिए. Labor hours is a basis over here. The factory cost comes to 2,600 irrespective of the workmen engaged. So you are required to find out what is the interpretation of hourly rate and also compute the cost of raw material. चलो तो start करते हैं. Okay, so write down the answer. Write down the answer. Calculation of factory cost. Calculation of factory cost. इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? मटेरियल एंड आर्ली वेज रेट. आर्ली वेज रेट. Write it in 400 pages notebook. Serial number. Yes, anyone wants to try it? Particulars. Yes. हाँ चलो फटाफट बोलो बेटा पर्टिकुलर्स, और प्लीज आंसर करते रहो. लेबर ए एंड लेबर बी करेक्ट है बेटा. लेबर ए के नीचे क्या लिखूंगा? हल्से एंड हियर रो 1. वेरी गुड बेटा. हल्से एंड रो 1. रोमन 1. yes, what you are going to consider? Material. Material x. okay, मटेरियल एज्यूम x ऐसा लिख देते, मतलब एक लाइन एग्जाम में बच जाएगा. लेबर. लेबर बेटा वर्किंग नोट 1 लिख दू, फिर वर्किंग नोट 1. देन ओवरहेड्स. ओवरहेड्स इधर कैलकुलेशन बताएंगे. यस बेटा, हाउ मेनी आवर्स? 7.5 into 32 and here 7.5 into 30. Very good. And then you will use calci at the end, and the factory cost. Very good. Factory cost दोनों का 2,600. So 7.5 into 32. 240 and 225. ये आपके घर में आवाज चल रहा है या कोई और आया? कौन है ये बेटा? भारती नायडू जी म्यूट कर लो. चलो फटाफट. हाँ ओके. सो फैक्ट्री कॉस्ट, वर्किंग नोट 1, लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट वर्कर ए. Which plan? Halsey plan. What is the formula? Time taken, rate per hour plus 50% of time saved into rate per hour. Yes, time taken into rate per hour plus 50% of time saved into rate per hour. What is time taken? 32 plus y. 50% into time saved is 8 hours into y. So 32y plus 4y is equal to 36y. So I will write over here 36y, and now worker B
रोवन, यस बेटा अब्दुल्ला, स्पीड आ गया क्या अब्दुल्ला अभी आपको? Yes. So what is the formula? Time taken into rate per hour plus time taken upon time allowed into time saved into rate per hour. Yes. I hope सबको स्पीड आने लगा है अभी. Yes, मधुरा, can you match this speed? मधुरा मात्रे, चलो बोलो जल्दी जल्दी यार, थोड़ा आंसर दीजिए तो अच्छा लगता है. सर लाइव बैच में बैठा हूँ, लगना चाहिए ना. मधुरा, निकिता, चलो छोड़ो. टाइम टेकन बेटा, टाइम टेकन कितना है? 30 आवर्स इंटू वाई प्लस 40 इंटू 10 इंटू वाई. ठीक है, कर लेता हूँ मैं सॉल्व अभी. 3/4 इंटू 30 डिवाइड बाई 40, 7.5, 37.5 y. करेक्ट है. So now we are getting two equations. So simultaneous equations लिखता हूँ अभी. First one is x plus 36y 2600. Can I write it as 2036y is equal to 600 minus 240? 2360 चलेगा क्या? And x plus 37.5y is equal to 2600 minus 225, 2375. x फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड डिडक्ट किया, so minus 1.5y is equal to 15. Therefore y is equal to rupees 10 per hour. Y is equal to rupees 10 per hour, and therefore x is equal to x plus 36 into 10 is equal to 2360. Therefore x is equal to 2000. Therefore material is equal to rupees 2000 and labor per hour is equal to rupees 10 per hour. 7 minutes लिख के रखो. बेटा ये एग्जाम स्पीड है, फटाफट 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 करते रहने का एग्जाम में. So this is not the new question for you. ये न्यू क्वेश्चन है भी नहीं आपके लिए. अशोक बोल रहा है नेक्स्ट आंसर मैं दूंगा. वेरी गुड बेटा अशोक. चलो इंडेक्स में आ जाओ. इंडेक्स में राइट डाउन क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 15. क्वेश्चन नंबर 15, सिमिलर टू इलू, सिमिलर टू SM इलू 8, सिमिलर टू SM इलू 8 एंड स्कैनर का कौन सा था रे? ऐसा ही वी सॉल्व इट वन 7.4, that is 11. Scanner 11. You can give 7.4 or scanner 11 as per my notes. Scanner का 11. Yes. चलो अशोक जी. क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ. अशोक यू वांट टू आंसर इट? अरे आलोक, आलोक को सॉरी, आलोक है. हाँ चलो आलोक. चलो क्वेश्चन नंबर 16. A company is undecided as what kind of wage scheme should be introduced. The following particulars have been compiled in respect of 3 workers.
वर्कर 1 2 3 एक्चुअल आवर्स वर्क एंड आर्ली वेज रेट. सो ये मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट टाइम वेजेस. करेक्ट है. 380 into 40. Production in units. Production in units 360 210. So these are the units produced. Product A, B, C, and standard time allowed is 460 250. और लास्ट का कितना है बेटा? ये V हो गया मेरे इसमें. ये बराबर है क्या V? डैश है ना ये. एंड स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर unit of each product 15 minutes, 20 minutes and 30 minutes. Each minute is valued at rupees 1 per unit. 1 per unit. So this is helpful for piece wages. Guaranteed hourly rate. Piece work earning basis but guaranteed 75% of basic pay. तो basic pay का 75% तो guaranteed है. Guaranteed hourly if his earnings are less than 50% of basic pay. तो गारंटेड कब मिलेगा? कि जब भी उसका 50% ऑफ बेसिक पे से कम रहेगा तो. ओके. सो पीस वेजेस बट गारंटेड टाइम एंड प्रीमियम बोनस बेसिस अंडर रोवन स्कीम. ओके. सो वी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. डिफरेंट बेसिस फॉर डिफरेंट अर्निंग्स. चलो लिखो. कौन सा था ये? इलू 15. ओके. So first scheme is beta, what is the first question? Number 1, guaranteed hourly rate basis. What is the formula beta? Rate per hour. Time taken into rate per hour. Correct है? So now we can do serial number because there are 3 workers ना beta. पर्टिकुलर्स एंड वर्कर 1 2 3. तो टैबुलर फॉर्मेट में लिख देते हैं. टाइम टेकन इज बेटा टाइम टेकन इन आवर्स ना. 380 100 आवर्स एंड 540 आवर्स बराबर है. एंड रेट पर आवर in rupees 40 50 60. करेक्ट है. सो रोमन 3 wages और earnings 1 into 2 in rupees. Wages in rupees. So 380 into 40 you will get 15,200. 100 into 50 without calci 5,000 and 540 into 6 60 is equal to 32,400. Okay. बेटा piece wages. Second one piece wages. श्रेया मेरा स्पीड मैच हो रहा है क्या आपका? अद्विका ओके. चलो नेक्स्ट वन पीस वेजेस. यस बेटा आलोक. पीस वेजेस इज इक्वल टू इनटू रेट पर यूनिट. करेक्ट है. नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट. एंड बेटा नाउ हाउ टू कैलकुलेट रेट पर यूनिट हियर? स्टैंडर्ड टाइम per unit into rate per minute. ओके. रेट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू टाइम है ना पर रेट पर मिनट. रेट पर मिनट. तो आंसर आएगा आपका यहां पे. ठीक है. चलो. सो सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स 1 2 3. रोमन 1
units produced in units. Units produced in units. Yes बेटा, units produced in units कितने हैं? A एक एक यूनिट्स यस बेटा कितने यूनिट्स है? ए 210 360 460 बी डैश डैश एंड कितना है? डैश डैश एंड अच्छा वो ऊपर नीचे हुआ है क्या? वर्कर 1 का है ना वो 210 डैश है, सॉरी 210 डैश एंड 460 ना, नहीं और 600 है ना, 600 सॉरी, और उसके बाद 360 डैश 1350 एंड सी का क्या है रे बेटा? 460 250. So what is the total? So is producing 1030 units, 250 units and 1950. करेक्ट है? करेक्ट है ना? रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड into rate per minute. So 15 into 1, 20 into 1 and 30 into 1. So rupees 15, rupees 20, rupees 30. Roman 3, Roman 3, Roman 3 is piece wages. 1 into 2, 1030 into 15, 15540. कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये प्रेजेंटेशन गलत हो गया. रेट पर यूनिट, प्रेजेंटेशन हो सकता है एग्जाम में ये चीज. अभी यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए था, जस्ट राइट डाउन, होता है एग्जाम में. नाउ ए बी सी का रेट पर यूनिट डिफरेंट था. ओके 1520. तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर्स. और ये पैनिक सिचुएशन में मत जाना एग्जाम में. हियर ये क्यों गलत हुआ? बिकॉज ए बी सी इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए था वर्टिकल फॉर्मेट में. इफ रेट्स आर डिफरेंट एंड वर्कर्स आर कांस्टेंट, तो आपका प्रेजेंटेशन यू कैन राइट इट बाय रेड पेन कि इफ वर्कर्स आर कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, तो आपका प्रेजेंटेशन मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए था? इंस्टेड ऑफ वर्कर, तो प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए था? प्रेजेंटेशन मस्ट बी प्रोडक्ट्स एंड देन वर्कर्स. बिकॉज प्रोडक्ट्स का रेट डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट्स को कॉलमनर में लिखोगे एंड वर्कर्स को सीधा लिखोगे. सो ये कुछ चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी. श्रेया, यू गॉट दिस?
तो आपका हो सकता है कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे ये हो जाएगा। एंड डोंट गेट पैनिक कि अरे करते टाइम आपको ध्यान में आया अरे एबीसी का प्रोडक्ट है, वर्कर ए को अलग अलग रेट मिलता है। ओके, लिखा रेड पेन से। चलो लेट्स मूव। ठीक है, टाइम वापस स्टार्ट कर रहा हूं यहां से ही। हो सकता है एग्जाम में, तो इधर मैं क्या कॉलम बनाऊंगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट्स, ए बी सी, रोमन 1, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी ये कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन में हमने पहले एबीसी लिया था ना। रुक रुक रुक, नंबर, हाँ ठीक है बोलो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नहीं इसको सिंप्लीफाइड, आपको वर्कर्स के हिसाब से रेट चाहिए ना, वर्कर 1 का। वर्कर 1 का नहीं, ऊपर के इसमें हमने किया रहता तो चलता था। पहले वाले फॉर्मेट में कर सकते हैं, यस सॉरी, पहले वाले फॉर्मेट में ही करेंगे। हाँ, रेट पर यूनिट के बदले में इधर इधर हम लोग, हाँ 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 हाँ, वही ज़्यादा इजी जाएगा। एबीसी, एबीसी, एक सेकंड ये लाइन कट कर दो, कट कर दो। रुपीस कितना था इधर, 15, 20, 30, 30, इजी था ये, सॉरी। ये सेम फॉर्मेट में कंटिन्यू कर सकते थे क्योंकि वो भी चेंज हो जाएगा, वर्कर वाइज आएगा ही नहीं। एंड नाउ यू कैन डू, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो। नाउ इस वेजेस, हाँ, तो अभी 15 इंटू 210, तो आपको 1 इंटू 2 करना है, पर ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 210 इंटू, ये देखो ये कांस्टेंट है, 15 कांस्टेंट है, तो कैल्सी का शॉर्टकट यूज कर सकते हो। 15 इंटू 210 इज इक्वल टू, तो ये आएगा आपका 3150, देन जस्ट इधर तो डैश है, एंड 600 इज इक्वल टू 9000। ये हुआ ए का। बी का क्या होगा, 20 इंटू 360, 7200 डैश एंड 1350, सॉरी 27,000। हाँ, यही फॉर्मेट को कंटिन्यू करना है फिर। सी 460, 30 इंटू 460, शॉर्टकट ऑन कैल्सी, 13800 एंड 250 इज इक्वल टू, यस बेटा। टू 210 यूनिट्स इंटू आर्ली रेट चाहिए, वो करता हूँ मैं बाद में। 210 क्योंकि अभी तो आपको यही चाहिए ना, 3150 प्लस 7200 प्लस 13800, तो हाउ मच, 24150 ऑफ ए, इसका 7500 एंड इसका 6000। नहीं, तो ये प्रेजेंटेशन यही कंटिन्यू रहेगा। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा अभी। अच्छा, और एक कर सकते थे, और एक कर सकते थे, और एक प्रेजेंटेशन में देता हूं। इधर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, वर्कर, वर्कर्स का कॉलम आएगा। एक प्रेजेंटेशन और देता हूं, 1 2 3, और इसमें आपका रोमन 1, नहीं इसमें भी 1 में भी 2 कॉलम्स आएंगे आपके, यस, यूनिट्स, रेट पर यूनिट, या रेट पर यूनिट तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। पर्टिकुलर्स में आप लोग रेट पर यूनिट लिख सकते हो।
सीरियल नंबर 1 में प्रोडक्ट ए आएगा, सीरियल नंबर में प्रोडक्ट ए, बी, सी, और इसमें आपका मतलब ये भी एक हो सकता है वेजेस, यूनिट्स, वेजेस। तो आपका एक 2 बार लिखने का एबीसी बच जाएगा, क्योंकि रेट पर यूनिट ए बी सी, तो ये आपके 2 बार लिखे ना आपने, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 बार आप एक ही बार लिखोगे रेट पर यूनिट 15, 20 एंड 30, 15, 20, 30, और आपके यूनिट्स क्या क्या है वो लिख दोगे 210, यस कैन यू टेल मी, 210, 360 एंड 460 डैश डैश 250, और लास्ट वाला आपका रहेगा 600 एंड 1350 डैश। तो 210 इंटू 15 ये कितना आएगा, 3150, 7200, 13800, करेक्ट है ना। और 250 का 7500 आएगा, एंड दिस वन विल बी 9000 एंड 27000। तो 24,150, 7,500 and 36,000. Comparison with 50% of time wages, 50% of time wages comparison। तो 1 का कितना हुआ 3, 50% कितना हुआ टाइम वेजेस 15 to 100 इंटू 50%, कितना होता है 15%, 50% कितना आया 8,600 और 24,150 विच एवर इज हाइयर। ठीक है, हाइयर नहीं बोल सकते, 15,200 है ना। ओके 7,600 हियर, सेकंड वन 5,000 इंटू 50%, 2,500, and last one is 32,400 into 50%, so 16,200 as piece wages are greater than 50% of time wages, therefore no guaranteed time wages। यही बोला था ना सेकंड क्वेश्चन में। व्हाट इज आस्क्ड बेटा, यू हैव टू कंपेयर 50% of time wages with piece wages। if 50% of time wages is more, then in that case you will pay 75% of basic wages। got this concept? yes बेटा, अद्विका समझ में आया क्या? तो आपको किसके साथ कंपेयर करना है 50% ऑफ टाइम वेजेस, और यदि 50% ऑफ टाइम वेजेस ग्रेटर आया रहता तो यू विल पे 75% ऑफ टाइम वेजेस। ठीक है, तो दोनों टेबल्स बताए, फ्लो में बदल सकता है आंसर, यू कैन यूज शॉर्टकट, पर एग्जाम में पैनिक मत होना फ्लो में लिखते टाइम। यस आलोक जी करेक्ट है, यस। तो लॉन्ग कट भी कभी कभी हो सकता है,
एग्जाम में आप लोग सिर्फ व्हाट इज आस्क इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट। और ये आप अभी भी देखो, मैं भी ऐसा हुआ कि मेरा फ्लो भी लिखने के चक्कर में मैं जो बाद में ध्यान में आया, अरे एबीसी का तो ये हो गया करके, अभी वर्कर को इधर लेना चाहिए था। देन आई गॉट टू नो, नहीं बाबा वर्कर भी ऊपर ही रहना चाहिए था, एबीसी एबीसी। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने फिर शॉर्टकट यूज किया। तो फॉर्मेट एग्जाम में गलत हो सकते हैं, मतलब गलत मतलब क्या होगा कि आप फ्लो में कुछ अलग लिख दोगे, तो इट्स ओके। तो डोंट गेट पैनिक इन एग्जाम। ऐसा हो सकता है कि अरे अरे ये क्या हो गया, ये अभी तो आ ही नहीं रहा आंसर। तो ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आया तो डजेंट मैटर, पर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो फिर फॉर्मेट बदल सकते हैं। नेक्स्ट वन, एंड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज आस्क इन द क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन नाउ? आई थिंक दिस इज स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है ना ये, टीवाई के 2 है ना ये? हाँ, सिमिलर। प्रीमियम बोनस बेसिस where worker received bonus based on row 1 scheme. Okay, so third question, write down row 1 scheme क्या बोलती है? row 1 scheme, yes, time starts. row 1 scheme, time taken into rate per hour plus time taken upon time allowed into time saved into rate per hour. Okay, so now we are aware about rate per hour, correct है? rate per hour हमें पता है, तो हम लोग एक काम करेंगे, वर्कर वाइज ये कर लेते हैं। वर्कर, नाउ वी आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोफॉर्मा, सो टाइम टेकन, तो टाइम टेकन बाय वर्कर ए, तो वर्कर ए का टाइम टेकन कितना है? यस, हाउ मच टाइम टेकन? 380। चलो, सो 380 इंटू रेट पर आर, रेट पर आर कितना है? 380 इंटू रेट पर आर इज 40 है ना? हाँ, यस, नहीं नहीं नहीं, 380 इज टाइम टेकन, बराबर है, एंड रेट पर आर इज 40। मुझे अब्दुल का आवाज था क्या? कुछ समझ में नहीं आता बेटा, आपका माइक का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, वर्कर 1 सॉरी, वर्कर 1, हाँ, वर्कर 1 टाइम टेकन 380 एंड व्हाट इज टाइम अलाउड? नाउ व्हाट इज टाइम अलाउड? देखो, टाइम अलाउड मीन्स हाउ टू कैलकुलेट? यस, एनीवन जो टाइम अलाउड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, सी 15 मिनट्स आर अलाउड है ना, 15 मिनट्स ए के अलाउड है, तो यस, कैसे निकाल सकते? टाइम अलाउड कैसे निकालना है? तो मैं इधर थोड़ा 3 लाइन छोड़ के लिख देता हूं। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ टाइम अलाउड। टाइम अलाउड में कैसे निकालूंगा? अभी एग्जाम में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो 1 यूनिट प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट इज 15 मिनट्स, करेक्ट है? सो नाउ हाउ मच टाइम इज टेकन? यस बेटा, यूनिट 1 का कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है? 210 यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करना है। सो 210 यूनिट्स आई वांट टू प्रोड्यूस, तो 15 मिनट्स के हिसाब से कितना? सो 210 इंटू 15, सो 3150 मिनट्स। अभी ये तो मुझे ध्यान में आया, तो अभी मैं कैसे निकालूंगा? सो आई गॉट दिस कॉन्सेप्ट की प्रोडक्ट, अभी ए तो तीनों बना रहा है, ए बी सी। हाँ, ए में कितना लिया उसने? 210 इंटू 15। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी यूनिट्स ही प्रोड्यूस्ड? 360। 360 इंटू कितना अलाउड है? 360 इंटू बी का, चलो फास्ट, बी का कितना मिनट्स है? 20। एंड लास्ट यूनिट्स कितने बना रहा है वो? सी का कितना बना रहा है क्वेश्चन में? 460 इंटू 30। हाँ, तो टोटल कितने मिनट्स हुए? मेमोरी प्लस का फंक्शन यूज करो, 210 इंटू 15,
360 into 20 memory plus and 460 into 30 memory plus 24150 minutes, that is कितने hours divided by 60, 402.5 hours, बराबर है. So 402.5 hours into सेव कितना हुआ 402.5. So 380 divided by 402.5 into कितना डिफरेंस है 22.5 ना, 22.5 into 40 रुपीज. कितना आया आंसर? यस, टेल मी आंसर. 850 ना, 850, 15200 plus 850. So I am getting answer 16050. करेक्ट है 16050. सेकंड वन वर्कर 2. नाउ यू कैन डू शॉर्टकट भी कर सकते हो, पर नाउ वी डू नॉट हैव बेटा ये शॉर्टकट के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा अभी. सो 380 into 40. तो वैसा इधर कितना आवर्स है टाइम वेजेस, हाउ मच टाइम ही हैज टेकन. चलो फास्ट फास्ट फास्ट. 100 into 50 प्लस टाइम टेकन हमें पता है, टाइम अलाउड वी आर नॉट अवेयर, एंड इंटू 50 कर देते. टाइम अलाउड एंड टाइम सेव्ड इज नॉट नोन. सो स्टेप टू टाइम अलाउड कितना मिनट्स प्रोड्यूस कर रहा है ये, कितना यूनिट्स 250 यूनिट्स. प्रोडक्ट सी है ना, सेम प्रोडक्ट सी 250 यूनिट्स इंटू कितना मिनट्स 20 मिनट्स 4500, दैट इज कितना 7500 नहीं रे 5000 आएगा. 5000 मिनट्स डिवाइड बाय 60. सो 83.33 आया ना, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. हाँ 250 इंटू, अच्छा 250 इंटू 30 है. यस यू आर करेक्ट. 7500 मिनट्स दैट इज 125 आवर्स. सो यू सेव्ड 25 आवर्स. प्रोडक्ट सी का 30 है ना बेटा. ओके, एंड लास्ट वन 100 into 50, 100 divided by 125 into 25, 50 plus 1000. कितना आया रे 1000 और ये 5000, 6000 आया ना. एंड वर्कर 3, चलो वर्कर 3 तुम लोग करो फास्ट, प्लीज डोंट रेफर आंसर. मैं भी करता हूँ, तुम भी करो. टाइम हैज टेकन 540 hours, 260 plus time allowed, time taken 540 divided by we are not aware 60, time allowed step 3, time allowed is 600 into 15, 20 and 30 है. 15 plus 1350 into 20 plus डैश, इसका कुछ नहीं है. तो दिस इज 600 into 5, 9000 plus 1350 into 20, 27000, 36,000 minutes, that is 600 hours. So 600 hours मैं इधर डाल दूंगा. So it is 60. So 540 into 60 memory plus 32400 plus 540 divided by 600 into 60 into 60 memory plus 3240. Total is 35640. करेक्ट है क्या? 35640. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये मिनिमम. 21 मिनट्स बीच बीच में बहुत प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो गए थे. यस,
टैबलो प्रेजेंटेशन अच्छा है या ठीक है ऐसा प्रेजेंटेशन? फॉर आई कैन गिव यू टैबलो प्रेजेंटेशन ऑल्सो, पर एग्जाम में आपको टेबल्स बनाने के चक्कर में सीधा सीधा लिखा तो ज़्यादा इजी जाएगा. सो विच वन इज इजी बेटा? टैबुलर बना के दूँ क्या? ठीक है ना? ठीक है, नहीं तो मैं टैबुलर भी बना के दे सकता हूँ आपको, स्कैनर में दिया है जैसे. पर ये आप स्टेप्स लगाते जाओगे तो यूल फाइंड इट इजी, डोंट वरी. क्योंकि एग्जाम में सेम प्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल है जो इनका होगा वैसा ही प्रेजेंटेशन. यस, एनीवन हु ट्राइड दिस? हाँ बोल ना बेटा. किधर किधर किधर? टाइम टेकन नहीं बेटा, टाइम टाइम अलाउड तो हो ही नहीं सकता था ना बेटा. क्या होता है, मैं आपको एक सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूं. आप जब मिक्स करने जाते हो ना आंसर एग्जाम में, तो बहुत खिचड़ी हो जाती है. ठीक है, मतलब ऊपर आई कैन गिव यू एकदम शॉर्टकट, एक ही टेबल में पूरा आंसर दे सकता हूं, बट इतना टाइम एग्जाम में होगा क्या, फर्स्ट थिंग. और आपको वो टेबल एग्जाम में खुद से याद आएगा क्या? ठीक है, तो इसीलिए जैसे जैसे पूछा है ना वैसे वैसे आगे बढ़ते रहो. मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिल गया. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स मिल गया. और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 मार्क्स मिल गया. नहीं भी सॉल्व हुआ थर्ड वन, तो एटलीस्ट यू विल गेट स्टेप मार्क्स. ठीक है, मतलब मैं इसकी खिचड़ी कर सकता हूं. एनी अदर आंसर इज ऑल्सो ओके. मतलब ऐसा नहीं है कि सेम प्रेजेंटेशन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट इन एग्जाम. पर प्रॉब्लम क्या होता है कि इतना टाइम ही नहीं रहता कि एक टेबल में क्या क्या लिखना है. ओके आलोक? नहीं तो आप कर सकते हो ऐसा. आपको लगा अभी ये ऑलरेडी आपने सॉल्व किया रहेगा, पर सपोज आप ऐसा समझो कि ये आपके सामने ऐसा ही भेज दिया मैंने क्वेश्चन, तो आपको आएगा क्या सॉल्व करने को तुरंत फॉर्मेट वाइज? ऐसा मैं पूछ रहा हूं. मतलब सेम क्वेश्चन ठीक है, अभी ये आपने पहले सॉल्व किया रहेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. पर सपोज एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट तो 2 क्वेश्चंस के आंसर तो लिख के 5 मार्क मिल जाएंगे ना तुझे. ओके. हाँ 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 हाँ. नहीं तो ये मैं इसका और शॉर्टकट दे सकता हूँ. क्या दे सकता हूँ? आप इसी में वेजेस निकाले, बराबर है, इसी टेबल में आगे मैं कंटिन्यू कर सकता था. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अभी आपको कोई और प्रेजेंटेशन करना होगा तो आप कर सकते हो, नो डोंट वरी, सेपरेट प्रेजेंटेशन. बट माय वे कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से फ्लो में रहते रहो. फ्लो गलत हो गया, ओके, कोई मैटर नहीं करता है, हम लोग कट कर देंगे फ्लो गलत भी हो गया तो, और आगे सॉल्व करेंगे. ऐसा होगा, स्क्रैचेस तो होने ही वाले हैं. और इतना क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन आईसीआई इज नॉट गोइंग टू आस्क यू नाउ. सेम क्वेश्चन आया तो अपना लॉटरी लग गया समझ लो. ठीक है, चलो इंडेक्स में आओ. Yes, anyone who already tried this question? Advika? क्यों नहीं आया बेटा? अच्छा. यस अद्विका, क्यों नहीं आया था बेटा थर्ड? मैंने आपको क्या समझाया मैंने आपको? एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आर गेटिंग लेस मार्क्स इन एग्जाम फॉर कॉस्टिंग. दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट द आंसर. और प्रेजेंटेशन का चक्कर ही मत काटो. प्रेजेंटेशन, यू नो द फॉर्मूला, जस्ट पुट डाउन योर फिगर्स. यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला. हमें करना क्या था, टाइम टेकन वी आर अवेयर. टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कैसे करेंगे? तो मैंने ये सिंपल फॉर्मेट कर लिया. पहले मुझे भी दिक्कत लगता है. सी 1 यूनिट को 15 मिनट्स, तो 210 को कितने मिनट्स, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. नाउ एवरी टाइम आई डोंट हैव टू राइट, सो मैं जल्दी जल्दी ऐसा लिखूंगा, एबीसी का प्रेजेंटेशन मिनट्स देन कन्वर्ट इनटू आवर्स. अभी वही स्कैनर वालों ने क्या किया होगा, स्कैनर वालों ने उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाया. कैसे बनाया, मतलब एग्जामिनर ने उसने ट्राई किया कि इसको सिंपल इसमें लेके आओ. अभी उनका प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा? यस, हाउ दे मेड इट इजी. मेरे पास उनके भी आंसर्स है.
पर मैं कभी उनके आंसर्स नहीं देखता हूँ, मैं अपने फ्लो से चलता हूँ। यस, फाइनल आंसर चेक करना है बस। हाँ अभी देखो, टाइम अलाउड का उन्होंने इधर ए बी सी का टैबलो प्रेजेंटेशन किया एंड देन डिवाइड बाय 60, तो सेम प्रेजेंटेशन वी मेड ओनली। उन्होंने बाद में इसको क्या किया, बोनस का अलग लिया और वापस एक टेबल बनाया। डू यू थिंक इतने टेबल एग्जाम में हम लोग बना सकते हैं? कि हमें ये खुद से समझने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा जो हमें फॉर्मूला आ रहा है उसी से कंटिन्यू करो। ओके खुशहाल, ओके बेटा। खुशहाल, चलो ठीक है। शुभम अपना माइक बंद कर दीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन। हाँ हाँ जी, अभी समझ में आया क्या आपको? ओके, और किसने, आलोक आपने किया था, क्या किया था, हेल्प लिया था या डायरेक्ट सॉल्व किया था? अच्छा आंसर ठीक है, पर फॉर्मेट प्रेजेंटेबल था ना आपका? अच्छा नो वरी, डोंट वरी। अरे मे बी, मेरे हिसाब से इफ यू सी इन द नेक्स्ट बैच तो मेरा फॉर्मेट माइट बी डिफरेंट, तो बैच टू बैच मैं ऐसा आंसर देखता भी नहीं हूँ, डायरेक्टली फॉर्मेट बदलते रहते। तो आप दिमाग में से ये निकाल दो कि एग्जाम में मुझे कैसे फॉर्मेट आएगा। एग्जाम में आप फ्लो में रहोगे, फॉर्मेट अपने आप आ जाएगा। ओके आलोक? बेटा लंबे में आप शॉर्टकट मारने भी गए ना तो और लंबा हो जाएगा ये। तो आपको कौन सा ये करना है, 5 मार्क वाले क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं, और 10 मार्क के थोड़े, अभी 10 मार्क का क्वेश्चन है तो बेटा 18 मिनट्स का क्वेश्चन तो वो खुद देने वाले हैं, तो 18 मिनट्स का क्वेश्चन मतलब बड़ा ही क्वेश्चन होगा ना ये। हाँ, तो आपको पहले कौन से क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं, जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन है और जो देखे, तो इसीलिए तो ऐसे आपको पहले 15 मिनट्स देती है। तो 15 मिनट्स में यू हैव टू डिसाइड योर सीक्वेंस कि मैं कौन सा फटाफट करूं। एंड सपोज आप कहां पे अटक भी गए तो भी 3 से 4 मिनट दीजिए, पैनिक मत होइए, 2 मिनट पानी पी लीजिए, ऐसा होने वाला है आपके साथ। तो अपने को 60 लाना रहेगा, तो आपने प्रैक्टिस की है, पर सपोज इसके बाहर के क्वेश्चंस आ गए तो पूरे इंडिया को डिफिकल्ट जाने वाला है खुशहाल, आपको अकेले को नहीं जाने वाला। ठीक है, और जो मेहनत आपने पिछले एग्जाम में की हुई है उसी को कंटिन्यू कीजिए, डोंट यूज एनी अदर टेक्निक, चेंज भी मत कीजिए, वही सिर्फ उसको, जो टॉपिक्स आपने पहले नहीं किए थे वो टॉपिक्स को अभी और ध्यान दीजिए। हाँ 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 हाँ, होता है ऐसा। तो बड़े क्वेश्चंस टेंशन नहीं लेने का इतना, ठीक है। चलो स्टार्ट, नेक्स्ट वन। हाँ इंडेक्स लिखो, इंडेक्स में लिखो, ए प्लस कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। वेजेस कैलकुलेटेड, प्लान्स कौन से थे? नंबर 1 टाइम, टाइम बेसिस, पीस बेसिस एंड रोवन। ओके, टाइम बेसिस का एकदम सिंपल था, क्या था? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, सिंपल। पीस वेजेस में क्या था? अभी देखो इंडेक्स, देखो मैं कैसे बना के दे रहा हूं। यस, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? फॉर्मेट, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट था। तो लास्ट में जब रीडिंग करोगे तो आपको रिवीजन के टाइम पे यू शुड नो कि मेरा फॉर्मेट यहाँ पे मुझे अलग से करना पड़ेगा, और फॉर्मेट सिर्फ लिख के रख देने का इंडेक्स में। क्या फॉर्मेट बनाया था हमने? चलो जल्दी से बताओ, फॉर्मेट याद करो, बोलो। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट था ना शायद से, पर्टिकुलर्स था। हाँ, वर्कर्स के अंडर क्या क्या कॉलम थे? यूनिट्स एंड वेजेस। पर्टिकुलर्स था या प्रोडक्ट था? हाँ,
इसका सेकंड वन ना, हाँ, सीरियल नंबर के बदले में प्रोडक्ट लिखा, तो इधर क्या था, रेट पर यूनिट, और वर्कर्स में 1 2 3 ऐसे आएंगे आपके अलग अलग, और एक वर्कर में यूनिट्स एंड वेजेस। ठीक है, फॉर्मेट मीन्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द फॉर्मेट, तो इसमें फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट, इंडेक्स में लिखा। एंड रोवन प्लान में क्या इंपॉर्टेंट था, रोवन प्लान में टू कैलकुलेट, क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, टाइम अलाउड, प्रोडक्ट ए का प्लस प्रोडक्ट बी प्लस सी इन मिनट्स, पहले किस में मिलेगा, इन मिनट्स, देन कन्वर्ट इनटू आवर्स, in minutes and then convert into hours. Over Advika? Yes, और कुछ लिख के दूं, आलोक ओके बेटा, हो गया स्पून फीडिंग, हाँ चलो नेक्स्ट वन, ए प्लस कैटेगरी, एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्लीज इसको देखो, 10 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट वन, नाउ वेरी इजी क्वेश्चंस, ये 17 नंबर किसके जैसा है, चलो जल्दी से बताओ, 17 नंबर एनीवन, मैं 19 में 5 मार्क के लिए आया था, चलो बताओ यार जल्दी जल्दी, कुछ था क्या ये, तो इसी में कंप्लीट करते हैं। मेसर्स जेवा प्राइवेट लिमिटेड अलॉटेड, ये तो बहुत इजी है। ये साध्वी का कोई किसके जैसा है, जल्दी बोलना बेटा, ऐसा है ही नहीं, 5 मार्क के लिए, नवंबर 22 में आया था क्या, ओके चलो ठीक है। Messrs. Zeva Private Limited allotted a standard time of 40 hours. So time allowed, hourly rate rate per hour, and time taken actually 30 hours. Time taken. Chalo. So write down answer. Roman 1. I'll say plan. Time taken into rate per hour plus 50% into time saved into rate per hour. Time taken 30, rate per hour 75 plus 50% into 10 into 75, चलो कितना आ रहा है देखो, 75 plus 30, 75 into 30, 2250 plus 375, 2625, very good, पहला आंसर ओवर। सेकंड आंसर, रोवन प्लान, राइट डाउन फॉर्मूला, रोवन प्लान, टाइम टेकन into rate per hour plus taken upon time allowed into time saved into rate per hour. Time taken is 30 into 75 plus 30 upon 40 into 10, ये कितना था, 2250 ना, 562.50, please do not copy, please calculate it, 2812.5, अभी एक गलती होने वाला है आपसे, हाँ, टाइम वेजेस, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर बराबर है, टाइम वेजेस, राइट डाउन टाइम वेजेस, रोमन 3, टाइम वेजेस
टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, टाइम टेकन कितना 30 इंटू 75 कितना हुआ 2250। हाँ अभी पीस वेजेस, अभी पीस वेजेस का नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। पॉसिबल है क्या ये इधर, नहीं। हाँ तो अभी एक नया फॉर्मूला याद रखना, इफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर आवर इज नॉट नोन, तो यहां पे फॉर्मूला होता है टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, पीस रेट का टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। टाइम अलाउड कितना है 40 इंटू 75 3000। ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, इसलिए पीस रेट में दूसरा फॉर्मूला यूज करने का, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर, नॉट टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर, ये याद रखो। इफ दिस फॉर्मूला डजंट वर्क, इंडेक्स, कम टू इंडेक्स, यस इंडेक्स में लिखो नॉर्मली पीस वेजेस formula is units produced into rate per unit, units produced into rate per unit, but here क्या फॉर्मूला होगा, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर, as units are not given, time allowed into rate per hour as units are not given। कैटेगरी बी पर यह IMP लिख के रखना साइड में, ये पहली बार ही हुआ ऐसा। आलोक आंसर देख के आया था बेटा ये आपको, हाँ यहीं पे तो 1-2 मार्क्स जाते हैं ना आप सबके। और ये ऐसे टाइम पे बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करने का, टाइम टेकन हो इनटू रेट पर आवर ये दिया है, पीस वेजेस नहीं दिए, तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया रहता, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर तो भी चलता था ना। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा देने का वहां पे कि नहीं है तो कुछ तो लिख के आने का, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ठीक है हो गया लिख के। तो हियर वी आर गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो। तो यहाँ पे हमारा ऑल हालसे रोवन प्लान्स, इंसेंटिव प्लान्स वी हैव फिनिश्ड विथ। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट पर आवर। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा इफेक्टिव रेट पर आवर।